Good evening, each and everyone. We have seen about the introduction of heart and also the organs associated with heart. So today we are going to see about structure of heart, means inside. अंदर में क्या क्या है? What are the parts of heart inside? Chambers. कितने layers से heart बना है? So today we'll see about structure of heart from outside and also inside. So let's see about the structure of heart. The heart wall. The heart wall is composed of 3 layers of tissue. So heart के 3 layers हैं, main 3 layers. First layer is pericardium. Pericardium is the outermost layer. बाहर रहता है फर्स्ट लेयर, बाहर से मैं बोल रही हूँ. So first layer is pericardium, middle layer or the second layer is myocardium, and the inner अंदर का जो लेयर है थर्ड लेयर इज एन endocardium. So these are the structures, these are the layers of heart: pericardium, myocardium and endocardium. So here is a picturization of it. So you can see the picture here. This is a heart, and heart is consist of layers made up of 3 layers. Outermost layer is called pericardium. Second layer, the second layer is called myocardium, made up of muscles, and the heart and the innermost layer is called as endocardium, which is very hard in structure. So first one is pericardium, second is myocardium, and third one is endocardium. So first we will see about pericardium. The first layer of heart is pericardium. The first point, the pericardium is the outermost layer of heart and is made up of 2 sacs. So pericardium ये outermost layer है और first layer of heart है. So ये pericardium is made up of 2 sacs. ये pericardium जो है 2 sacs से बना हुआ है. Outermost sac consists of fibrous tissue. Inner sac consists of continuous double layer of serous membrane. So ये जो sacs हैं, these sacs consist of 2. जो बाहर sac है, sac मतलब लेयर, जो लेयर है ऑलरेडी उसके ऊपर पतला सा और एक, इफ़ इट इज़ अ पेरिकार्डियम, इसको 2 लेयर से ऐसे कवर हुआ है. सो दो लेयर से एक फाइब्रस टिश्यू है और एक है कंटिन्यूस डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन. सो आउटर लेयर इज़ नोन एज पेराइटल पेरिकार्डियम. सो आउटर लेयर जो है, जो फाइब्रस टिश्यू है, उसको हम पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं, और इनर लेयर जो है उसको विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. See, this is pericardium layer. Okay, the thick one. इस पेरिकार्डियम को एक डबल लेयर्स, ऐसा लेयर्स बना हुआ है. इसको हम फाइब्रस टिश्यू या पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं और इसको विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं. So outer layer is known as parietal pericardium. Inner layer is known as visceral pericardium. The space between 2 sacs is known as pericardial space, which is filled with serous fluid, which is secreted from serous membrane of inner sac. So इसको इस जो स्पेस है, मतलब ये लेयर के बीच में जो स्पेस है, इट इज़ फिल्ड विथ सीरस. सीरस मतलब लिक्विड टाइप, जो लिक्विड टाइप इसमें फिल हुआ है, ताकि जब हार्ट पंपिंग करता है या हार्ट कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन होता है, उस टाइम ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट लेयर्स को, ताकि कुछ इंजरी ना हो. 3 लेयर्स हैं ऐसा हार्ट लेयर्स: एंडो, मायो, पेरिकार्डियम. सो ये पेरिकार्डियम के अंदर जो फ्लूइड है, जब हार्ट बीट स्टार्ट होता है और कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये जो फ्लूइड है वो हार्ट लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है, ताकि एक दूसरे के साथ ये
रप्चर ना हो करके. सो दिस सीरस फ्लूइड इज अ लिक्विड which is present in between the layers serous fluid, so that the space between two sacs is known as pericardial space, which is filled with serous fluid which is secreted from serous membrane of inner sac. So हम यहाँ देखे थे inner sac है जो serous membrane है. So ये serous membrane will release serum. serum मतलब liquid type है, white liquid type रिलीज़ करता रहता है ताकि जो दो लेयर्स के बीच में वो लिक्विड फॉर्म होता है, ताकि दोनों के बीच में जो रप्चर ना हो. जब हार्ट कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते टाइम ये रप्चर नहीं होने के लिए ये जो सीरस फ्लूइड हेल्प करता है. सो दिस इज़ द पेरिकार्डियम. Again I want to repeat this pericardium. Pericardium is the outermost layer of heart and it is made up of two sacs. Outer sac is fibrous tissue. Another name is parietal pericardium. Inner layer is visceral pericardium. ये parietal और visceral pericardium के बीच में एक serous fluid है जो एक दूसरे से इंजरी ना हो, एक दूसरे का लेयर्स रप्चर नहीं होने के लिए हेल्प करता है. This is pericardium. So next one is myocardium, second layer. So first layer is peri, second is myocardium. The myocardium is composed of specialized cardiac muscles founded only in heart. ये जो myocardium है ये स्पेशलाइज्ड मसल्स से जो बना हुआ है. वो मसल्स मेरे ख्याल से आप लोग मसल्स में पढ़े होंगे या फिर टिश्यूज़ सेल्स टिश्यूज़ में आप लोग कार्डियक टिश्यू पढ़े होंगे, आई होप. सो कार्डियक टिश्यू या कार्डियक मसल ये जो अलग ही जो है जो आपके बॉडी में कहीं और नहीं मिलेगा. ओनली इन कार्डियक मसल ओनली इट इज़ present. So you can't see in another organs. So it is a specialized tissue or a muscle which is found or which can be seen in only heart. Second point, it is not under voluntary control but straighted like skeletal muscle. Each fiber cells has nucleus and one or more branches. So आप लोग जब इसको देखते हैं मसल को, मसल में जो फाइबर्स हैं उसको एक एक सेल में एक एक न्यूक्लियस, अलग से एक एक सेल के लिए एक एक न्यूक्लियस है. सब सेल्स के लिए एक ही न्यूक्लियस नहीं है, बट जो जो सेल्स हैं एक एक सेल के लिए अलग सा न्यूक्लियस है. और वो वॉलंटियर मतलब वो जो फाइबर है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो कंटिन्यूसली करता रहता है. Third point, the sheet arrangements of the myocardium enables the atrium and ventricles to contract in a coordinated and efficient manner. So ये जो myocardium is helping in contraction relaxation of atrium and ventricles. ये atrium and ventricles हैं chambers है हार्ट के, आगे पढ़ेंगे. Myocardium is network of specialized conducting fibers responsible for transmitting the heart electrical signals. ये जो myocardium है ऑलरेडी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भी काम करते हैं. वैसे ही सेम जो सिग्नल्स हैं मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जो ज़रूरत है वो भी मायोकार्डियम हेल्प करता है पास करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए. मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल्स को पास करने के लिए भी मायोकार्डियम हेल्प करता है. देन मायोकार्डियम इज थिकेस्ट एट द एपेक्स एंड थिन आउट टुवर्ड्स द बेस. जब आप ये मायोकार्डियम लेयर देखेंगे, सो दिस इज हार्ट, सो इट इज़ बेस. जो ऊपर का पार्ट बेस है और नीचे का एपेक्स है. तो मायोकार्डियम इज़ थिक, सो थिक है मायोकार्डियम. ये एपेक्स के पार्ट में थोड़ा सा थिक है कंपेयरिंग टू द बेस पार्ट. जो बेस पार्ट थोड़ा सा थिन है और नीचे पे इसका लेयर थोड़ा सा मोटा है. सो दिस इज मायोकार्डियम. थर्ड वन इज एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम इज द थर्ड लेयर, इनर मोस्ट लेयर, जो अंदर है, अंदर से फर्स्ट है और बाहर से लास्ट है. सो एंडोकार्डियम, दिस लाइन्स द चैम्बर्स एंड वाल्व्स ऑफ द हार्ट. सो मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ कि हार्ट के अंदर चैम्बर्स है. तो चैम्बर्स का जो जुड़ा हुआ लेयर, जो चैम्बर्स को कवर करता है लेयर, इसको एंडोकार्डियम बोलते हैं.
और ये जो इनर लेयर है और थर्ड layer of heart. It is a thin smooth membrane to ensure smooth flow of blood through the heart. It consists of flattened epithelial cells and it is continuous with the endothelium lining the blood vessels. So जो एंडोकार्डियम है वो एकदम स्मूथ मेम्ब्रेन है और वो एकदम हल्का सा है और जो ब्लड अंदर जो चैम्बर्स में फ्लो हो रहा है उसको बहुत अच्छे से हेल्प करता है एंड इट इज़ हैविंग कंसिस्टिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स. जो एपिथेलियल सेल्स है उसके अंदर विच हेल्प्स कंटिन्यूस एंडोथेलियल लाइनिंग द ब्लड वेसल्स. ये जो फ्लैटेंड मतलब एकदम स्मूथ एपिथेलियल सेल्स जो है वो एकदम अच्छे से हेल्प करता है कि अंदर का जो चैम्बर से ब्लड फ्लो होता है एट्रियम से वेंट्रिकल्स उस टाइम वो एकदम स्मूथली हेल्प करता है कि फ्लो होने के लिए. So this is the endocardium, the third most layer of heart. First is pericardium, myocardium, endocardium. So next we will see about interior of heart. The heart is divided into left and right. The heart is divided into right and left sided by the spectrum. A partition consists of myocardium covered by endocardium. Each side is divided by an anteroventricular valve into upper atrium and the ventricle below. Arterioventricular valve, these are formed by double layers of endocardium strengthened by little fiber tissues. So इसके लिए हमको एक डायग्राम की ज़रूरत है. Yes, here is a diagram. So let's see the diagram. ये हार्ट का लेयर्स है, पिंकिश कलर जो है लेयर्स है और अंदर 4 चैम्बर्स है. हार्ट के चैम्बर्स मतलब रूम्स, छोटे छोटे रूम्स को हम चैम्बर्स बोलते हैं. तो हार्ट के अंदर 4 ऐसे जो चैम्बर्स हैं. तो हार्ट लेफ्ट एंड राइट डिवाइड हुआ है. फिर से बीच में एक सेप्टम ऐसे करेंगे तो बीच से जब डिवाइड किए जो एक वॉल है ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड को डिवाइड करता है. जब एक ऐसा एक लाइन है जो ऊपर और नीचे को डिवाइड करता है, जो एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है. ध्यान से सुनना क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है. जो सामने बोलना और यहाँ वीडियो में एक्सप्लेन करना it's difficult to understand. So again listen. This heart is divided vertically into 2, left side, right side. जब हॉरिजॉन्टली जो डिवाइड हुआ है, बीच से जब डिवाइड करेंगे हार्ट को तो ऊपर को एट्रियम्स बोलेंगे और नीचे जो है वेंट्रिकल्स हैं. ठीक. और ये है राइट एट्रियम और नीचे का है राइट वेंट्रिकल. मैं राइट साइड का बात कर रही हूँ, ये लेफ़्ट साइड है. सो फर्स्ट वन यहाँ जो है वो राइट एट्रियम, ATRIUM एट्रियम. ये जो नीचे का है और राइट वेंट्रिकल्स, मैं ऑलरेडी बोली हूँ नीचे का वेंट्रिकल्स है, ऊपर का एट्रियम्स है. तो राइट साइड का है तो ऊपर का राइट एट्रियम, नीचे का राइट वेंट्रिकल. ये राइट साइड हो गया. हम लेफ़्ट साइड देखेंगे. चैम्बर्स 2 चैम्बर्स है यहाँ भी लेफ़्ट साइड का और ऊपर का है लेफ़्ट एट्रियम और नीचे का है लेफ़्ट वेंट्रिकल. आई होप यू अंडरस्टैंड. मैं फिर से बताती हूँ. हार्ट को जब आप बीच से डिवाइड करेंगे मतलब वर्टिकली जब आप डिवाइड करेंगे वो 2 पार्ट हो जाएंगे कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट. हार्ट के अंदर का मैं बात कर रही हूँ, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड. यस. जब आप बीच से मतलब हॉरिजॉन्टली जब आप डिवाइड करेंगे हार्ट को उस टाइम भी 2 पार्ट होंगे, एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स. ऊपर का हम एट्रियम्स बोलेंगे, नीचे का वेंट्रिकल्स. सो जब हम राइट साइड का बात करेंगे ऊपर का है राइट एट्रियम, नीचे का है राइट वेंट्रिकल. लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट एट्रियम है ऊपर और नीचे है लेफ़्ट
ventricle. So these are the chambers, 4 chambers, 1, 2, 3, 4. Right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. So these are the chambers of heart. चैम्बर्स के पास बाद आ गया है आर्टेरियो वेंट्रिकुलर। ये जो एट्रियम है और वेंट्रिकल है, तो आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, वाल्व मतलब दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे है, जो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आने के लिए थोड़ा सा जो स्पेस है उसको हम आर्टेरियो वेंट्रिकुलर स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे भी है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लड पास होता है ऊपर से नीचे। सो इस स्पेस को हम आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स बोलते हैं। वाल्व मतलब वे। सो राइट साइड का राइट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व और लेफ्ट साइड का लेफ्ट आर्टेरियो ventricular valve. So till here you understood, I hope. Again I'll repeat. See, blood flow होना है राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में। ब्लड होने के लिए छोटा से एक रास्ते से निकलना है ब्लड, वो रास्ते को हम इंग्लिश में वाल्व बोलते हैं। और राइट साइड है, दोनों को बीच में है, इसलिए हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोल रहे हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड है तो राइट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। वैसे ही सेम लेफ्ट साइड दोनों के बीच में भी है जो रास्ता जो ब्लड पास होता है एट्रियम से वेंट्रिकल्स। सो इसको भी एक नाम है लेफ्ट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर. So next we will read and come. Then yes, AV valve. Right side AV valve has 3 flaps, is known as tricuspid valve, which separates right atrium and right ventricle. जो हम यहाँ पे जो valve के बात किए हैं उस valve का और एक नाम है tricuspid valve. So जो right atrium और left atrium को divide करता है, it is also known as tricuspid valve, which separate right atrium and right ventricles. Left side arterioventricular valve has 2 flaps, is called as mitral valve or bicuspid valve, which separates left atrium and left ventricles. मैं फिर से समझाती हूँ, sorry. यह जो हम आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, इसके अंदर 3 चीज़ों से जुड़ा हुआ है और इस तरफ 2 ही चीज़ों से जुड़ा, मतलब टिश्यूज़। सो 3 से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लेफ्ट आर्टेरियोवेंट्रिकुलर बोलते हैं और ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ट्राई मतलब 3, कस्पिड मतलब 3 cups like. So this is having another name, tricuspid valve. जो left side है, it is made up of 2 types of cups, so it is called as bicuspid valve और another name is mitral valve. इसका 3 नाम है। फर्स्ट है right arterioventricular valve और tricuspid valve. Tri means 3 cups like structure, tricuspid valve. जब आप लेफ्ट साइड देखेंगे, इसका लेफ्ट आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि ये 2 कप से जो बना हुआ है इसलिए हम इसको बाई मतलब 2, सो बाइकस्पिड, और इसको मिटल वाल्व भी बोलते हैं। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। एंड चैम्बर्स, सो चैम्बर्स साइज यहाँ है। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। राइट एट्रियम साइज है 2 to 3 millimeter साइज। राइट वेंट्रिकल 4 to 5 millimeters in size. Left atrium 2 to 3 millimeters. Left ventricle 10 to 15 millimeters. ये जो इसमें से ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि वो ही है जो जहाँ से
जो प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा बॉडी को सप्लाई करता है, इसलिए थोड़ा सा वो बड़ा है और स्ट्रॉन्ग भी है. सो अगेन आई विल रिपीट, 4 chambers, right atrium 2 to 3 millimeters, right ventricle 4 to 5 millimeters, left atrium 2 to 3 millimeters, and left ventricle 10 to 15 millimeters. So these are the chambers size. So tomorrow I'll start with this blood flow. So I'll stop till here. I hope you have understood the interior, the layers of heart, and also the chambers and the division between the atrium and ventricles, arterioventricular valves, tricuspid, bicuspid, and mitral valves, and also the sizes of 4 chambers. Thank you.